Hello, dear student. How are you? I am Arvind Arna. Welcome to you in Co International School online platform. हमने पिछली क्लास में ऑप्टिक्स वाला पोर्शन चालू किया था। आज इसमें कुछ आगे बात करते हैं ऑप्टिक्स की। तो आगे बात करेंगे तो हम उसमें अभी देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमारा क्या, हमने कल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा था। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड ही आपका एक टॉपिक है क्या, ऑप्टिकल फाइबर। तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कौन सा, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, देखिए आप ऑप्टिकल फाइबर को अगर हम डिफाइन करें कि ऑप्टिकल फाइबर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल अप टू वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। फिर से सुने क्या बताया, ऑप्टिकल फाइबर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल्स अप टू वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। फिर अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बताया, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट इज बेस्ड ऑन द, सॉरी, it is based on the principle of total internal reflection of light, based on the principle of total internal reflection of light, total internal reflection of light, total internal रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है, इस पे वर्क करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा चुका है। क्या बताया आपको ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, ऑप्टिकल फाइबर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो एज वेल एज वीडियो सिग्नल अप टू वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस। प्रिंसिपल की बात करें कि प्रिंसिपल क्या होता है इसका, तो देखें, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है। ठीक है, नाउ आगे बात करें इसमें, तो स्ट्रक्चर की बात करें अगर हम ऑप्टिकल फाइबर की, तो ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ए फाइन क्वालिटी फाइबर, optical fiber consists of a fine quality fiber made up of quartz or glass. It consists of several fine quality fiber, good quality fiber whose elasticity should be more, so we have to use here quartz or quartz as well as glass. Now it consists of three surfaces. The inner surface of optical fiber, inner surface of optical fiber is called core. Outer surface after the core, it is called as cladding, and the upper surface of this optical fiber is called buffer coating. Buffer coating, these are the three surfaces of optical fiber: core, cladding, buffer coating. ठीक है, so optical fiber is made up of several fine quality fiber whose elasticity is more, and these are made up of quartz or glass. All these several these fibers together form a light pipe. Several quality of fiber are made to form the light pipe. ठीक है, these are made to form the light pipe. After then, whenever a light incident on the first surface of optical fiber, then first of all a refraction of light will takes place. क्या होगा, first of all light will get refracted. So first of all refraction of light will takes place from the surface, and when angle of incidence should be more than the critical angle, then total internal reflection of light will takes place from different surfaces of this fiber.
ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विल टेक्स प्लेस फ्रॉम डिफरेंट सर्फेसेस ऑफ फाइबर एंड फाइनली लाइट गेट इमर्जेस। ठीक है, तो वर्किंग में हम क्या लिखेंगे, इसकी वर्किंग क्या है, वेन एवर a light ray incident on first surface of optical fiber, then first of all refraction of light will takes place, and after refraction the light ray become incident on the inner surface of optical fiber called core। ठीक है, so when angle of incidence should be more than the critical angle, angle of incidence should be more than the critical angle, then total internal reflection of light will takes place from different surfaces of optical fiber, from different surfaces of optical fiber, and total internal reflection of light from the fiber will takes place such that there is no loss of light rays। ठीक है, there is no loss of light will takes place। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये प्रिंसिपल हो गया, इसकी वर्किंग हो गई। यूजेस की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर इज यूज्ड इन एंडोस्कोपी। ठीक है, एंडोस्कोपी, और इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल अप टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, मेडिकल साइंसेस में बात करें तो एंडोस्कोपी में इसका यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं, एंडोस्कोपी में, इट इज़ यूज्ड इन एंडोस्कोपी। लेकिन अगर मैं इसमें जनरल बात करूं तो इट इज यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल अप टू वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस और लार्ज डिस्टेंसेस। तो ये आपका ऑप्टिकल फाइबर हुआ। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या पढ़ना है इसमें, लेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन दैट व्हाट डू यू मीन बाय द लेंस। सो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। अगर हम बात करें कि व्हाट डू यू मीन बाय द लेंस, तो लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम whose both surfaces or at least one surface become spherical, whose both surfaces become spherical or at least one surface become spherical। फिर से सुने क्या बताया लेंस में, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। लेंस क्या है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम whose both surfaces और at least one surface become spherical। ठीक है, या तो इसकी क्या होंगी, दोनों सरफेस स्फेरिकल होंगी या एक सरफेस स्फेरिकल होगी। तो फिर से सुने क्या बताया, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम whose at least both surfaces और वन सरफेस बिकम स्फेरिकल। और क्या होगा, या तो दोनों सरफेस होंगी या एक सरफेस इसकी कैसे होगी, स्फेरिकल होगी, लाइक दिस। एक सरफेस स्फेरिकल है, दूसरी हमने क्या बना दी, प्लेन बना दी। दिस इज ऑल्सो ए लेंस। तो आपको क्या बताया, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम whose both surfaces or at least one surface become spherical। Now after then lens can be divided into two types। लेंस जो है उसको हम कितने, दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। लेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज व्हाट, कॉन्वेक्स। क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। एंड सेकेंड वन इज कॉनकेव लेंस। लेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में बात करते हैं हम, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्वेक्स लेंस। सो द लेंस whose central part is thick and extreme part is thin। अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं लेंस को, तो क्या बताया, द लेंस whose central part is thick and extreme part is thin, like this। और थोड़ा सा बेटर बना लेते हैं, द लेंस whose central part is thick, central part is thick एंड एक्सट्रीम पार्ट इज थिन। सेंट्रल पार्ट तो कैसा होगा, थिक होगा, और एक्सट्रीम पार्ट कैसा होगा, थिन होगा, लाइक दिस। क्या बताया आपको, द लेंस हुज सेंट्रल पार्ट इज थिक, मोटा मतलब, एंड एक्सट्रीम पार्ट इज थिन, इज कॉल्ड व्हाट, कॉन्वेक्स लेंस। सेकेंड बात करते हैं तो कॉनकेव लेंस होगा। कॉनकेव लेंस क्या होगा, द लेंस whose central part is thin, lens whose central part is thin and extreme part is thick। central part कैसा होगा, thin, and extreme part is thick, is called as what, concave lens। फिर से सुनिए क्या बताया आपको, concave lens।
द लेंस हुज सेंट्रल पार्ट इज थिक, एक्सट्रीम पार्ट इज थिन। ठीक है, सेंट्रल पार्ट कैसा होगा? थिक, एक्सट्रीम पार्ट कैसा होगा? थिन। दिस लेंस इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होगा? द लेंस हुज सेंट्रल पार्ट इज थिन, एक्सट्रीम पार्ट इज थिक, कॉल्ड कॉनकेव लेंस। ठीक है, फिर बेसिकली एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि बेसिकली आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है, एक ये होता है। एक होता है वाई कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये 3 टाइप होते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब एक प्लेन होगा, एक कॉन्वेक्स होगा। बाय कॉन्वेक्स ये हमने जो बनाया है। तो अगर आपसे कभी भी बाय कॉन्वेक्स बात करें या सिंपल कॉन्वेक्स बात करें तो एक ही मीनिंग है। बाय कॉन्वेक्स और सिंपल कॉन्वेक्स का मतलब एक ही बात होती है। बात समझ पा रहे हैं आप? प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब एक सरफेस प्लेन, एक कॉन्वेक्स होगी। बाय कॉन्वेक्स का मतलब बोथ सरफेस कॉन्वेक्स होंगी। मतलब अगर हम आपसे सिंपल कॉन्वेक्स की बात करते हैं तो एक वही बात हो गई, सेम बात हो गई। ठीक है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स में कॉनकेव होगी, एक कॉन्वेक्स होगी, लेकिन जरूरत नहीं है। ये इसको कॉन्वेक्स सिंपल या वाई कॉन्वेक्स कहेंगे, इसको कॉनकेव सिंपल और वाई कॉनकेव कहेंगे। बात क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस। तो कुछ डेफिनेशन आज पढ़ेंगे इसमें, कुछ कल पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम बात करते हैं क्या? डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस। डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस, डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस। तो देखिए, लेंस से रिलेटेड डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस। डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस में हम पहली बात क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस की बात करते हैं तो आपको पता है जब भी हम किसी लेंस का फॉर्मेशन करेंगे तो 2 स्फेरिकल सरफेस होंगी। तो एक स्फेरिकल सरफेस ये होगी और सेकंड स्फेरिकल सरफेस यहां ले ली हमने। इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर हमने कह दिया C1 और ये वाली स्फेरिकल सरफेस का सेंटर हमने कह दिया C2। अब एक्चुअली क्या होगा, हमें अगर इन दोनों स्फेरिकल सरफेस के सेंटर्स को ज्वाइन करवाएंगे तो कुछ इस तरह से ज्वाइन होगा, इस तरह से। तो यहां पे हम डेफिनेशंस में क्या कह सकते हैं? द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द। अब एक्चुअली आपका जो लेंस है वो कितना है? तो ध्यान दें, अगर हम कहें कि लेंस का फॉर्मेशन जो तो हमने किया, लेकिन लेंस है कितना एक्चुअली? तो ये इतना सरफेसेस लेंस हो गया। ये वाली सरफेसेस आपकी क्या हो गई? लेंस हो गई। ठीक है, बाकी इसको हटा देंगे। तो आपको क्या बताया कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा? सो द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग दी बोथ दी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। क्या बताया? इमेजिनरी लाइन joining the both the center of curvature of lens. Imaginary line joining the both the center of curvature of lens is called its principal axis. उसको हम क्या कहेंगे? principal axis कहेंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट डेफिनेशन हम इसमें लिखेंगे ऑप्टिकल सेंटर। सॉरी, क्या लिखेंगे? नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए, ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा? इट इज ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। ऑप्टिकल सेंटर इज ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस थ्रू विच द लाइट रे पासेस अनडेविएटेड। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमने एक लेंस ड्रॉ किया, इस तरह से लेंस बनाया। लेंस बनाने के बाद इसको हमने यहां से ज्वाइन कर दिया। ठीक है,
और ये वाली लाइन ज्वाइन कर दी। अब एक्चुअली क्या होगा, जो लाइट रे पास होगी वो कुछ इस तरह से जाएगी, ये लाइट रे पास हो रही है, ये लाइट रे पास हो रही है। तो आपको क्या बताया, द इमेजिनरी सॉरी द लाइन द पॉइंट सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, इट इज ए रियल पॉइंट situated on the principal axis of lens after reflection from lens, if refraction from lens the light ray should pass as undeviated। जो light ray है वो कैसे पास होगी, undeviated पास होगी। यहाँ पे बात कर लेते हैं तो देखें, it is a point situated on the principal axis of lens, ठीक है, the point situated on the principal axis of lens through which the light ray become passes undeviated। जो लाइट रे है वो कैसे पास होगी, उससे अनडेविएटेड पास होगी, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। तो इट इज़ ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस थ्रू विच द लाइट रे बिकम पासेस अनडेविएटेड। तो लाइट रे अनडेविएटेड पास होगी, मतलब ऐसे जाएगी। ये आपका, इसमें रे की डायरेक्शन जरूर देखें, ठीक है। तो इट इज ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस थ्रू विच द लाइट रे पासेस अनडेविएटेड इज कॉल्ड व्हाट, ऑप्टिकल सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय O। तो आप इतना पढ़ के आइए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू।